Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Digba. Today I welcome to all of you students in my YouTube channel. So today we take an online lecture of the subject of specialized auditing for the student of A group. A group student will be dependent on accounting based student. The specialized auditing is a second subject of your. So in last two lecture we have discussed and also started 4 chapter which will be depend on cooperative society. In first lecture we have discussed and completed the concept is introduction of cooperative society, meaning of cooperative society, definition of cooperative society, and special features of cooperative society. In special feature we have covered 4 points in first lecture. In second lecture we have started from the fifth point of special features of cooperative society. So in last lecture we have discussed fifth point, 6.7, 8, 9, 10 points of cooperative society, and also have discussed about the main concept of appointment of auditor in a cooperative society, why the cooperative society is appointed an auditor, and what is the work of auditor in a cooperative society, and what kind of qualification is required for the person who will be appointed in a cooperative society. So we discussed in last second lecture the appointment of auditor in a cooperative society. Okay, so in last lecture we have discussed second lecture. So this is our third lecture of the chapter number 4th. Okay, but as per according to the syllabus we have completed, now move forward to third, but as per the syllabus this is your 4th chapter, but according to our completion of like chapters, so this will be our third chapter. We have discussed, I have discussed you in our lectures that we have discussed in a ओके सेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर. सो राइट्स क्या है कोऑपरेटिव ऑडिटर की कि उसे यानी कि कभी भी रिक्वायरमेंट है कोई भी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ हम डिस्कस आई हैव फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ राइट्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मैंने जूम करा है. कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर क्या है, बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जैसे हमने डिस्कस किया है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड एंड सर्विस टू द मेंबर्स. तो ये है उनका मेन उद्देश्य है, रेदर देन प्रॉफिट. उनका मेन क्या मोटिव क्या है, उनसे प्रॉफिट, अपने मेंबर्स कस्टमर से प्रॉफिट अर्न ना करना. ओके, सो यही मेन मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. इसीलिए ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो हर एक मेंबर को ज्वाइन करती है विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट मोटिव. So what kind of rights and duties of an auditor we have discussed. First of all, the rights of an auditor of cooperative society. पहले हम right discuss करेंगे, then duties of cooperative society. So first right of cooperative auditor will be right to access books and account. Right to access books of account मतलब main auditor की responsibility क्या है कि books of accounts प्रिपेयर करे कोऑपरेटिव सोसाइटी का. पर एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एवरी ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ टू फ्री टू कंप्लीट एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर हम महाराष्ट्र स्टेट में कोऑपरेटिव महाराष्ट्र स्टेट में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिटिंग कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑडिटर को क्या राइट है कि वो कोई भी टाइमिंग पे एट एनी टाइम दे हैव टू प्रिपेयर एंड कंप्लीट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कि वो फ्री है. मतलब यानी कि उन्हें पे कोई बर्डन नहीं है ऑडिटर के ऊपर कि हाँ ये कंप्लीट अभी करके देना है दिस. तो ये अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर का हर एक ऑडिटर को इन महाराष्ट्र स्टेट एक एलिजिबिलिटी दी गई है कि वो अपना काम ऑडिटिंग
कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है और उसके अंदर जो वाउचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो अपने पास ही रख सकते हैं, डिटेल्स वगैरह, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो दे हैव एन राइट टू एक्सेस एनी टाइम्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर उन्हें ऑडिटर को कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विथ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी से। जब उन्हें रिक्वायरमेंट रहेगी एनी काइंड ऑफ वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, so on that time whether they have required that kind of information, so they have access फ्री टाइम। उन्हें जब भी उस टाइमिंग पे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहेगी या कंप्लीशन फॉर्म में रहेगा तो जब भी वो फ्री हैं एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इन महाराष्ट्र से ऑडिटर को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, एक फ्रीनेस प्रोवाइड करी है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑडिटर को इन महाराष्ट्र स्टेट कि वो कभी भी कोई भी टाइमिंग पे जो वाउचर्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मेंटेन जब करते हैं तो वो अपने पास सिक्योरिटी के बेसिस पे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन को, प्रिपेयर करें अपनी नॉलेज के बेसिस पे एट एनी टाइम वेदर दे रिक्वायर। सो दिस आर द वेरी specific right which have provide to the auditor of cooperative society. Second right to obtain information or explanation. Auditor can ask from any company such or cooperative, अगर ऑडिटर को कोई भी रिलेटेड कंपनी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी की कभी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को चाहिए एट एनी सिचुएशन एट एनी टाइम, अगर उसे ऑडिटर को कोई भी इंफॉर्मेशन लग रही है जब वो ऑडिटिंग करता है, उसे कोई इंफॉर्मेशन और किसी का एक्सप्लेनेशन है तो वो उन पर्टिकुलर मेंबर्स और जो अपने क्लाइंट्स हैं जिसकी वो ऑडिटिंग करता है पर्टिकुलरली, जस्ट लाइक अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कर रहा है तो अगर उन्हें अपनी ऑडिटिंग के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो कोई भी स्टाफ से डायरेक्टली एट एनी टाइम दे हैव सर रिक्वायर्ड और उनसे पूछ सकता है कोई भी टाइम पे, और वो इंफॉर्मेशन देना कोई भी टाइमिंग पे ये कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की ड्यूटी रहेगी कि वो इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को रिक्वायरमेंट है और वो इंफॉर्मेशन अगर कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड है तो वो ऑडिटर अपना एक फेयर ओपिनियन और एक्सप्लेनेशन दे एट एनी सिचुएशन। और ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ऑडिटिंग करते हैं कोई, अगर उन्हें इंफॉर्मेशन वो हर एक अकाउंट को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी के टूवर्ड्स किसी भी सोसाइटी की ऑडिटिंग करेंगे तो दे हैव टू गिवन देयर ट्रू एंड फेयर व्यू एंड एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू। एक्सप्लेनेशन अगर करे तो एक्सप्लेनेशन जब वो देवे कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्टिंग की तो वो उसमें अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज़ करें। सो दिस आर द सेकेंड राइट टू ऑब्टेन एन इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम। तो ये एक सेकेंड राइट है ऑडिटर की, जब भी उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहेगी और ये ऑडिटर की ड्यूटी है दैट ही कैन आस्क एट एनी टाइम। Right to inspect branch account. If branch account are audited by a different auditor, the auditor has the right to inspect branch account and ask for any information or explanation about the branch account. ओके इफ़ अगर ऑडिटर अकाउंट ब्रांच अकाउंट को ऑडिटेड कर रहा है और वो बहुत सारे ऑडिटर ने उसकी ऑडिटिंग हो चुकी है पहले, तो जो भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है ऑडिट ऑफ ब्रांच की यानी कि ऑडिटर को, तो उसे वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन करे, मतलब उसको पूरा जांच पड़ताल करके चेक करे, इंस्पेक्ट करे उन ब्रांच अकाउंट्स को प्रॉपरली। और जो इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है कि ब्रांच के रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन दे कैन टेक फ्रॉम द पर्टिकुलर ब्रांच और उस इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को वो यूज़ करे वेदर दे मेंटेनिंग द ब्रांच अकाउंट्स। ओके, सो दिस आर द थर्ड राइट ऑफ एन ऑडिटर। राइट टू टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। सो ऑडिटर की क्या है, ये एक राइट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की कि जब कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीगल एडवाइस उनकी चाहिए रहेगी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो लीगल तरीके में मैटर्स में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीगल मैटर्स में हो या टेक्निकली कोई इश्यूज सॉल्व करने हो कोऑपरेटिव
सोसाइटी के अंतर्गत, या कोई भी कंपनी या कुछ जिसकी वो ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो ऑडिटर को ये राइट है कि लीगल मैटर्स पे या टेक्निकल मैटर्स पे अपनी एडवाइस दे और गाइड करे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिगार्डिंग एनी लीगल और टेक्निकल मैटर्स के अंतर्गत। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट है टू गिव हिज एडवाइस ऑन द लीगल एंड टेक्निकल मैटर्स। सो दिस विल बी द फोर्थ राइट ऑफ एन ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिफ्थ विल बी राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन का मतलब है कि ऑडिटर जो कंपनी, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहेगा, जो अब वो ऑडिटिंग अपनी पूरी कंप्लीट करता है, ऑडिट रिपोर्ट सेंड करता है, तो जो उसने ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करी है तो उसके जो चार्जेस वो रहेगा तो वो रिसीव कर रहा रेम्यूनरेशन, दैट विल बी द इसेंशियल राइट ऑफ एन ऑडिटर। तो ये ऑडिटर की राइट है दैट ही शुड रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी what he or should will be working in as per work। जो उसने काम करा है तो उसी के अंतर्गत वो रिसीव करेगा रेम्यूनरेशन चार्जेस। whatever the work they have been done for the society, so they can be charged as per right to receive remuneration as per the rules and regulation which have been regulated by the cooperative society, and what kind of amount they have been clearly mentioned whether they appointed any auditor in cooperative society। जो उन्होंने अमाउंट, सैलरी और फीस उन्होंने रिगार्डिंग कर रही है, यानी कि पेमेंट देने का पे स्केल डिसाइड किया है, तो उसी के अंतर्गत वो ऑडिटर को एट अ टाइम दे हैव टू पे, सो दे हैव टू पे रेम्यूनरेशन, तो उसे रेम्यूनरेशन चार्जेस बोलेंगे। तो दिस आर द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। फिफ्थ राइट, सो सिक्स विल बी राइट टू लाइन। राइट टू लाइन मतलब ये ऑडिटर की राइट है कि जो ऑडिटर को ऑडिटिंग जब वो प्रिपेयर करता है तो वर्किंग पेपर्स के ऊपर ही वो ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है। वर्किंग पेपर्स के अंतर्गत सारी डिटेल मेंशन करेगा कि फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिटर बनाता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट वो किसके पेपर पे बनाता है, इन अ वर्किंग पेपर। तो जो भी उसने डिटेल्स ऑडिट रिपोर्ट के रूल्स रेगुलेशन कंटेंट, जो भी जितने भी कंटेंट उसने मेंशन करे हैं तो वो सारे कंटेंट वो किस पे मेंशन करेगा, इन अ ऑडिट वर्किंग पेपर्स के। सो ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ये राइट है कि वॉट एवर द वर्क ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दे हैव टू मेंटेन इन अ ऑडिट वर्किंग पेपर। सो दिस आर द six number right of auditor in cooperative society। right number 7 will be right to sign the audit report and auditor। तो ऑडिटर के पास एक राइट है, जब वो वेरीफाई कर लेगा ऑडिट रिपोर्ट को कि हाँ ये ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपरली चेक है, सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है, तो ऑडिटर हैज़ अ राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट और द अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी साइन बाय द ऑडिटर। ओके, जब ऑडिटर वेरीफाई प्रॉपरली तरीके से कर लेगा कि हाँ, अपना ओपिनियन दे देगा पूरा का पूरा कि हाँ ये ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपरली चेक है, वेरीफाई है। सो जब ऑडिटर पूरी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेगा, वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद, रिव्यू देने के बाद, दे हैव टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। और इसके अलावा वो और भी अदर डॉक्यूमेंट अगर उन पे साइन करने की ऑडिटर की ज़रूरत है तो ये ऑडिटर के पास एक राइट है कि ऑडिट रिपोर्ट के अलावा अदर डॉक्यूमेंट पे भी दे हैव टू साइन। सो दिस आर द पावर और राइट विच हैव बीन regulated by the cooperative society to the auditor, to their auditor। तो ये राइट वो अपने पर्टिकुलर ऑडिटर को प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है, और अदर डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है कि हाँ अगर कोई शेयर होल्डर्स और नॉट प्रेजेंट नहीं है तो वो उसके बिहाफ पे ऑडिटर ये डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है, अदर डॉक्यूमेंट्स को। तो इसी के अंतर्गत वो अपनी ऑडिटिंग कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 8 राइट विल बी राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग एंड टू अटेंड द सेम। ओके, तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पर्टिकुलर यानी कि मैनेजमेंट अथॉरिटी एनुअल जर्नल मीटिंग
करते हैं और अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका जो नोटिस रहेगा, एनुअल जनरल मीटिंग लेते हैं जब वो, तो वो उसके लिए एक स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग कब, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या रहता है कि कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करती हैं। उसके अंतर्गत स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या हम देखते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन में कि हाँ कि हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, अपने कस्टमर को किस तरीके से। तो इस मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ओके, तो ये मीटिंग जब डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे डिसाइड हुई है, तो उसका जो नोटिस रहेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा ये नोटिस दे हैव टू सेंड इट टू द ऑडिटर, और ऑडिटर को ये राइट देती हैं दैट ही शुड रिसीव द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, और उसे अटेंड करना ये ऑडिटर को एक ग्रांटेबल है। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत होगी, तब ये यानी कि डायरेक्टली ऑडिटर have to receive that kind of notice of annual general meeting, and also he or she should have the power to attend the same annual general meeting as per the rules and regulation. So these are the rights, 8 rights which have been cooperative society has been provided to their ऑडिटर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सारी की सारी 8 राइट्स अपने ऑडिटर को प्रोवाइड करती है, वेदर जब वो अकाउंट मेंटेन करता है, कंपनी की ऑडिटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिटिंग करता है, तो ये उसके पास, ऑडिटर के पास 8 राइट्स हैं। इसी के अंतर्गत वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन राइट्स के अंतर्गत वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायरमेंट है, कोई भी अकाउंट्स की हो या लीगल मैटर्स पे अपनी एडवाइस दे, रेम्यूनरेशन रिसीव करे और साइन कर सकता है ऑडिटर। तो ये सारी राइट्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड करती है अपने ऑडिटर को। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ एन कोऑपरेटिव ऑडिटर। ड्यूटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर क्या है? फर्स्ट, स्टडी ऑफ प्रोविज़न। स्टडी ऑफ प्रोविज़न, पहले मेन ऑडिटर की, जो कोऑपरेटिव ऑडिटर है उसकी मेन ड्यूटी क्या है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर ऑफ कैटेगरी, मैंने आपको बताया बहुत कैटेगरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बहुत सारी विविध प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। तो ये सारी जो प्रोवाइड सोसाइटी हैं, तो इनके सारे जो नंबर ऑफ सोसाइटी हैं, तो एक जो प्रोविज़न है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जब ये ऑडिटिंग करती हैं तो ये इसके लिए, ऑडिटिंग करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करती हैं। तो अब जब ये अपॉइंट कर लेती हैं तो ऑडिटर की मेन ड्यूटी क्या रहती है? टू स्टडी प्रोविज़न, कि हाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो पर्टिकुलर कैटेगरी सोसाइटी है, कि किसके प्रोविज़न, कौन सा सेक्शन के अंतर्गत रजिस्टर है। जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से सेक्शन के अंतर्गत, कौन से रूल्स एंड प्रोविजंस है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही शुड स्टडी ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड बाय लॉज। तो एक्ट, कौन से एक्ट के तहत ये रजिस्टर है, कौन से ईयर में रजिस्टर हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारे प्रोविज़न, कार्बन कोऑपरेटिव, तो ये सारी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसकी भी वो ऑडिटिंग पर्टिकुलर कैटेगरी की कर रहा है, तो उसके प्रोविजंस और रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर, लॉस, तो ये सारी चीज़ें पहले चेक करें प्रोविजंस। सेकेंडली, वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट, कि हाँ कौन कौन से रिसिप्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों के प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करें। ऑडिटर की ड्यूटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की कि इन सारी चीज़ों को, वॉचिंग का मतलब क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ रहता है। वॉचिंग का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है, जिसके अंतर्गत, प्रूफ के अंतर्गत क्या रहते हैं? सारी डिटेल्स मेंशन रहती है कि रिसीप्ट अगर हम कर रहे हैं पर्टिकुलरली, जस्ट लाइक कि हाँ परचेज वाउचर है, सेल्स वाउचर है, तो ये वाउचर्स हैं। तो वॉचिंग ऑफ ये जो रिसिप्ट रहती है, पर्टिकुलरली सेल्स रिसिप्ट रहती है, परचेज रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट है, तो ये सारी जो रिसिप्ट्स हैं, तो ये ऑडिटर को क्या करनी है? इनको प्रॉपरली वॉच करना है, चेक करना है, और इन्हें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में रिकॉर्डेड करना है। इनके सारे ट्रांजैक्शन को, रिसीप्ट को रिकॉर्ड करना है पर्टिकुलरली ऑन दैट बुक्स
एंड दैट बुक्स लाइक सेल्स बुक्स, कैश बुक्स एंड पर्टिकुलरली परचेज बुक। तो ये सारी रिसीप्ट को ऑडिटर को वॉच करें, ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि पर्टिकुलर रिसीप्ट को पर्टिकुलर बुक्स में रिकॉर्ड करें। ओके। थर्ड विल बी वॉचिंग ऑफ मनी। वॉचिंग ऑफ मनी का मतलब कि हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास करंटली कितना कैपिटल है, कितना मनी रिक्वायरमेंट है, कि हाँ, और कितना वो अपने मेंबर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उन्हें लोन्स दे सकती हैं, या किस तरीके से वो सर्विस उतने पेमेंट्स में प्रोवाइड कर सकती हैं अपने मेंबर्स को, कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें पैसे और मनी के रिलेटेड ऑडिटर को प्रॉपरली वॉच करना पड़ेगा कि मनी रिक्वायरमेंट कितना है और कितने बेसिस पे ये रजिस्टर्स होते हैं। ओके। तो वॉचिंग ऑफ मनी विल बी वेरी इसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू चेक टाइम टू टाइम। ये सारी चीज़ें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है कि इन पैसों को प्रॉपरली, जो वॉचिंग ऑफ मनी को प्रॉपरली चेक करते रहना एज पर द टाइम टू टाइम। ओके। वॉचिंग ऑफ द लोन्स। वॉचिंग ऑफ द लोन्स में ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ है कि हाँ, कितने मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, उनका रिकवरी लोन्स, हम जिस भी पर्टिकुलर मेंबर्स को या कस्टमर को लोन प्रोवाइड किया है तो कितने परसेंटेज रेट में लोन प्रोवाइड करा है और उनका ड्यूरेशन कितना है, मंथ रिकवरी रेट कितना है, एनपीए है क्या, परफॉर्मिंग एसेट्स कैसा है, नॉन परफॉर्मिंग वर्किंग कैसा है। तो पर्टिकुलर मेंबर का अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो उनका जो लोन्स है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोन्स जिन जिन पर्टिकुलर मेंबर्स को दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन्स प्रोवाइड कराया है, तो उनको प्रॉपरली चेक करे, रिव्यू करे कि हाँ, और वो किस तरीके से रिकवरी रेट का वो यानी कि लोन्स पेमेंट कर रहे हैं, एज पर टाइम कर रहे हैं, कोई परफॉर्म कर रहा है लोन पे पर टाइम टू टाइम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। तो ये सारी ऑडिटर को ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करना रहता है, वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक द लोन्स रिकवरी रेट as per the particular member or as per the provisions or laws and regulation of the Cooperative Society Act. Fifth will be duty of an cooperative auditor will be examination of overdue loan. Examination of overdue loans में क्या रहेगा कि ऑडिटर को प्रॉपरली चेक करे कि ओवरड्यू लोन्स, अगर इफ़ ओवरड्यू लोन्स हैव बीन एक्सटेंड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो व्हाट काइंड ऑफ ओवरड्यू लोन्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू विच मेंबर्स, सो दे ऑडिटर हैज़ टू एग्जामाइन ऑन दैट पर्टिकुलर लोन्स सेक्शन, और किस किस को लोन्स ओवरड्यू लोन्स रिकवर्ड है, कितने अमाउंट्स में रिकवर्ड है। तो ऑडिटर को ये इस पॉइंट पे एग्जामाइन करना पड़ेगा, प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि ओवरड्यू लोन्स कितने परसेंटेज में है और वो कितने टाइम ड्यूरेशन के कैसे बेसिस पे हो रहा है, सो ओवरड्यू चार्जेस कैसे हैं। सो ये ऑडिटर को लोन्स की प्रॉपरली एग्जामाइन करता है ऑडिटर के ओवरड्यू लोन्स कोई है या नहीं है, वेदर दे एनालाइजिंग लोन्स। तो ये ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। एग्जामाइन का मतलब वो उसको प्रॉपरली चेक करेगा कि हाँ, ओवरड्यू लोन्स कितने परसेंटेज में हो रहा है या कितने क्षमता में हो रहा है। लास्ट विल बी एप्रोप्रिएशन ऑफ, लास्ट 6 पॉइंट विल बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कितने परसेंटेज में प्रॉफिट अर्न किया है अकॉर्डिंग टू द लॉस, कि हाँ, इस साल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न किया है और अपने मेंबर्स को हाउ मच प्रॉफिट दे हैव टू प्रोवाइडिंग टू देयर मेंबर्स, सर्विस कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उससे उन्होंने कितना प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अर्न किया है, और मेंबर्स से उन्हें क्या कितने उनके जो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उनको कितने अमाउंट में उन्होंने यानी कि प्रॉफिट दिया है और वो उन्होंने कितना कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अर्न करा है। तो ये ऑडिटर क्लासीफाई करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या इतने अमाउंट में प्रॉफिट अर्न मेकिंग है। ओके। जो द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ एन कोऑपरेटिव ऑडिटर, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या करेगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सारी चीज़ों को एनालाइज करना प्रॉपर, कि हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इफ़ पर्टिकुलरली किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करी हो या पर्टिकुलरली कंपनी के साथ मर्ज किया हो,
तो कौन से क्या बैंक के साथ मर्ज किया हो और कितने यानी कि इन्वेस्टमेंट उनमें करी हो, बैंक में करी हो, कंपनी के अंतर्गत करी हो, तो ऑडिटर ये इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली चेक करता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट करी है और कितने अमाउंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रॉपरली चेक कर यानी कि एग्जामिन करेगा ऑडिटर कि कितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करी है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस वक्त में, और पर्टिकुलरली दूसरे सेक्शन में कि इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज है। तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ता है वेदर दे यूटिलाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग एन ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि प्रॉपरली चेक करना कि इन्वेस्टमेंट किधर हुई है और कितने परसेंटेज में हुई है और कितने अमाउंट में हुई है, कितने इन्वेस्टमेंट रेट है और कितने पीरियड रेट कितना है, कौन सा है। ओके, सो दिस विल बी चेक बाय एन ऑडिटर वेदर एंड दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर. So investment should be verified.